this question they have given us so many terms, right? And it is also not clear that this will be AP or not. So let us determine this step by step. So first A1 is equal to 2. Next, they have given us that an plus 1 is equal to an plus 2n. Okay. So if I put different values of n, okay, so here an plus 1 is equal to an plus 2n. So if I put n is equal to 1, I will get a1 plus 1 2 equal to a1 plus 2 times 1. What is your a1? A1 is 2. 2 plus 2 equal to 4. If I put n equal to 2, so a2 plus 1 is 3 equal to a2 plus 2 times 2. Right, a2 is 4 plus 2 times 2, 2 2s are 4, 4 plus 4, 8. So if I put n is equal to 3, if I put n is equal to 3, then a3 plus 1 is a4, a4 is equal to a3 plus 2 times 3, right? From this, a3 plus 2 times 3. a3 is 8, 2 times 3 is 6, 8 plus 6 is 14. So if you see this series, right, ये आपका 2 है, after 2 it is 4, after 4 it is 6, after 8, and after 8 it is 14. तो क्या ये आपका AP है? Tell me, is this your AP? Is this your AP? No, right? ये आपका AP नहीं है. Okay, so here the first ever observation is here 2, 4, 8, 14. If you observe all their differences, here your difference is plus 2. From 4 to 8 difference is plus 4. Here your difference is plus 6. So this sequence is not an AP, right? This is not an AP. चलो अभी आपका AP नहीं है, right? अब आपको find क्या करना है? You have to find A100, right? Now if you go in this sequence and if you will find A100, तो A2, A3, A4, right? आपकी स्कूल की क्लास मिस हो जाएगी अगर अभी शुरू करोगे और रात को 10-11 बजे तक आपको A100 मिल जाएगा, राइट? आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करें? ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब आप इधर क्या हो सकता है, राइट? व्हाट कैन बी डन ओवर हियर. सो इफ यू सी फॉर an plus 1 and an, अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करो तो ये आपका 2n है, राइट? इट इज योर 2n एवरी टाइम. 2 1 2 2 2 3. इसमें से आप 2 रिमूव करो, ये आपका AP है. टेल मी, राइट? 2 2 2s are 4, right? 2 ऐड किया, then 2 3s are 6, right? After 2 plus 4 2 4 4 plus 2 6. तो जो आपका 2n है वो तो आपका AP होगा, isn't it? This is your form a plus n minus 1 into d, right? तो अब दिक्कत क्या है, right? You are having problem of an plus 1 and an. So now see over here, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Now I'm rearranging these terms, right? मैं इन टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ. अब रीअरेंज करके आपका क्या हो जाएगा, समझो. So after rearranging, can I write an plus 1 minus an equal to 2n? Yes or no? Right, ये प्लस एन आपका लास्ट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा. an plus 1 minus an is equal to 2n or not? Tell me. इतना तो बोलो, हाँ या ना? an plus 1 minus an equal to 2n होगा, राइट? अगेन सेम प्रोसीजर, राइट? अब n equal to 1 2 रखेंगे वापस, राइट? So now if I put n is equal to 1, so I will get a2 minus a1 is equal to 2 times 1 is equal to 2, right? या फिर मैं डायरेक्ट फिलहाल 2 आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 times 1 भी रख सकते हैं. चलो अभी 2 times 1 ही रखते हैं. ओके, चलो if I put n is equal to 2, so a3 minus a2 is equal to 2 times 2, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Now I put n is equal to 3,
So I'll get a4 minus a3 is equal to 2 times 3. Is it clear? क्या यहाँ तक clear हुआ? Tell me. क्या ये चीज clear हुई? And in the end आपको क्या चाहिए? You will put n is equal to 99. Right? End में आपको n equal to 99 रखना है. So in the end, right, when you will put n is equal to 99, so this will be your a 99 plus 1, a 100, right? क्यों मैंने 99 रखा? Because we want to find a 100. Okay. So a 100 minus a 99 is equal to 2 times 99. क्या इतनी चीज क्लियर हुई पहले? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, चलो अब मैं क्या करूंगा? व्हाट इज माय एम? आई वांट टू फाइंड ए 100. मुझे ए 100 चाहिए, राइट? मुझे और कोई टर्म नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनी अदर टर्म. चलो अब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ. इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, समझना, इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, तो क्या ये प्लस ए टू माइनस ए टू कैंसिल नहीं हो जाएगा? प्लस ए थ्री माइनस ए थ्री प्लस ए फोर माइनस ए फोर माइनस ए 99 प्लस ए 99, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. टेल मी. ओके, सी, राइट. सो माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, राइट, एडिंग ऑल द टर्म्स. मैं सारी टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ. ओके, वो सारा एडिशन आपको इधर ही समझा रहा हूँ मैं, समझो. चलो मैं यहाँ पे सारी टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ. आप नीचे अलग से लिखना, राइट? समझाने के लिए मैं इधर ऐड कर रहा हूँ. सो व्हेन आई विल ऐड ऑल ऑफ दिस टर्म्स, ओके, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में या प्लस ए टू और ये माइनस ए टू कैंसिल हो जाएगा. टेल मी, राइट? प्लस ए टू और माइनस ए टू कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? प्लस ए टू माइनस ए टू कैंसिल. व्हेन यू विल ऐड प्लस ए थ्री माइनस ए थ्री विल गेट कैंसिल. इन द सेम वे प्लस ए फोर माइनस ए फोर विल गेट कैंसिल, राइट? और लास्ट टर्म में आपका माइनस ए 99 है, वो ऊपर वाले टर्म में इधर ए 99 होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आपके पास होगा ए 99 माइनस ए 98 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 98, राइट? और ये माइनस ए 98 उसके ऊपर वाले प्लस ए 98 से कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से पूरी सीरीज में कैंसिलेशन चलता रहेगा. ऑन लेफ्ट हैंड साइड बस आपको दो टर्म्स बचेंगी, एक माइनस ए 1 और एक प्लस ए 100. क्या ये चीज क्लियर हुई? टेल मी. ऐड करने से बस आपके पास दो टर्म्स बचेंगी, माइनस ए 1 एंड ए 100 लेफ्ट हैंड साइड. क्या इतना क्लियर हुआ? राइट हैंड साइड अभी बाकी है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी लेफ्ट विथ ए 100 माइनस ए 1 इज इक्वल टू, ऑन राइट हैंड साइड अगर आप सबको ऐड करो तो सब में से 2 कॉमन है. 2 इज कॉमन फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म और नॉट? 2 को कॉमन निकाल दो. तो इन फर्स्ट टर्म यू आर हैविंग 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 एंड इन लास्ट टर्म यू आर हैविंग 99. ओके, टेल मी, क्या यहाँ तक सारी चीजें पता चली? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. राइट, एडिशन पता चला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा है? व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड? ओनली 2 टर्म्स, ए 100 माइनस ए 1. बट ऑन राइट हैंड साइड आपके पास सारी टर्म्स हैं, राइट? दैट इज फ्रॉम 1 to 99. क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर n इक्वल टू 3. नहीं, n इक्वल टू 3 के बाद मैं बाकी के टर्म्स लिखूंगा तो बहुत तो सारी टर्म्स होंगी. ओके, सी, इसलिए मैंने आपको बस ये 3 टर्म्स दिखाई, क्योंकि उसके बाद करूंगा तो फिर n इक्वल टू 3 के बाद आपका क्या आएगा? इधर n इक्वल टू 4, सो विल गेट a5 माइनस a4. ओके, चलो वो रिपीट कर रहा हूँ, समझो. ये टर्म वापस रिपीट कर रहा हूँ पहले. और फर्स्ट लेट मी, नहीं चलो पहले इतना रिपीट कर ही देता हूँ. चलो, तो मैंने रीअरेंज किया यहाँ से, समझना. ओके, सो व्हाट वाज माय क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको टर्म क्या दी गई थी? an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 2n, राइट? तो जब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये प्लस an आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस an. ओके, सो हियर यू विल गेट an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू 2n. ओके, चलो अब मैं इसमें अगर n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, सो आफ्टर पुटिंग n इक्वल टू 1 यू विल गेट a2 माइनस a1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1. ओके, चलो n इक्वल टू 2, अगर मैं n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो आई विल गेट a2 प्लस 1 दैट इज a3 माइनस a2 इक्वल टू 2 टाइम्स 2. फिर n इक्वल टू 3 रख रहा हूँ तो a4 माइनस a3 इक्वल टू 2 टाइम्स 3. और लास्ट में n इक्वल टू 99 रखूंगा,
So for n equal to 99, this will be a100 minus a99 equal to 2 times 99. And in the next step मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, right? क्यों ऐड कर रहा हूँ? Why I am adding all of them? Because I want only a100, right? I want only a100. मुझे और कोई टर्म नहीं चाहिए, और ऐड करने से सारी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी. बिकॉज a2 फर्स्ट टर्म में प्लस है तो दूसरे टर्म में माइनस है, a3 फर्स्ट टर्म में प्लस है तो नेक्स्ट टर्म में माइनस है, a4 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, कैंसिल. ओके, इस तरीके से सीरीज आपकी चलती जाएगी. एंड हियर माइनस a99 उसके प्रीवियस टर्म में प्लस a99 कैंसिल, माइनस a99 उसके प्रीवियस टर्म में प्लस a98 कैंसिल. मतलब ये आपका कैंसिलेशन का सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा, राइट? एंड इन द एंड आपका ये माइनस a99 भी कैंसिल हो जाएगा. इज इट क्लियर? राइट. a2 से फिर a3 से a4, इस तरीके से आपकी सारी चीजें कैंसिल होंगी. एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली a100 एंड माइनस a1 ऑन LHS, राइट? और RHS में मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1 + 2 + 3, राइट? 1 + 2 + 3 + 98 अप टू 99. इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? कुछ तो बोलो. Okay, so now, so therefore a100 minus a1 is equal to, okay, चलो 2 times 1 to 99, राइट? 2 से शुरू करके आपका 1 से 99 तक है. तो ये आपका a1 तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है, राइट? a1 इज योर 2, a1 आपको 2 ऑलरेडी दिया है. नाउ दिस इज योर 2 times, दिस इज योर AP और नॉट, राइट? ये आपका AP है 1 to 99 का समेशन, तो 1 to 99 का समेशन में इधर साइड पे फाइंड कर रहा हूँ. ओके, सो फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे डायरेक्टली. सो हियर 1 + 2 up to 99 is your AP, where your first term is a1, last term is 99. Okay, number of terms are also 99, common difference is 1. So Sn is equal to n by 2 a plus L. N is your 99, this is your 99 by 2, a plus L, 1 plus L, right? So L plus 1 is your 100 or not, right? Because last term is your 99, 99 plus 1, 100. So 99 by 2 into 100. Okay, तो आप 9900 करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, या पहले 50 कर लो, फिर जैसा भी आप करो, राइट? सो दिस इज योर 50, 9 5 45, राइट? 45 into 11, it is your 4950. डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, राइट? 99 by 2 1 + 99, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसी से आया है, राइट? डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसी से आया है, आप यूज कर सकते हो. बाकी बार बोर्ड्स है तो आपको वो, हाँ, यस, हाँ, हाँ, वो फॉर्मूला आपका यहीं से आया है, राइट? दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट? वो फॉर्मूला यहीं से आया है, फ्रॉम दिस AP ओनली. ओके, बट बेटर कि आप ये लिखो. ये फॉर्मूला आप कहाँ पे पढ़े? फाउंडेशन में. ओके, बेटर कि आप ऐसा दिखा दो तो अच्छा है. सो व्हाट वी गॉट, अच्छा, आपको स्कूल में पढ़ा है डायरेक्ट फॉर्मूला? ओके, तो अगर डायरेक्ट पढ़ा है तो फिर यूज कर सकते हो, बट एग्जैक्टली क्लास 10th में वो डायरेक्ट फॉर्मूला ठीक है. सो देयरफॉर a100 -2 वहाँ पे जाएगा, दैट विल बिकम योर +2, +2 टाइम्स 4950, तो ऑलरेडी हमने इसका 2 टाइम्स किया, ये इट विल गिव यू 9900. 9900 + 2, 9902. So this is your a100, this is your final answer. पता चला, राइट? इतनी मेहनत करनी पड़ती है 100 टर्म फाइंड करने के लिए. ओके, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 9.
ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10. चलो सी ओवर हियर. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. ओके तो आपके हाउसेज हैं एक रो में जो आपके कंसिक्यूटिवली नंबर्ड हैं फ्रॉम 1 to 49. ओके सो सपोज दिस इज योर वन रो. ये आपकी एक रो है. राइट. अलग अलग आपके हाउसेज हैं. लेट अस टेक दिस इज योर वन हाउस. एज्यूम ये आपका हाउस है. इस तरीके से आपके पास बहुत सारे हाउसेज हैं. राइट. इसी रो में थोड़ा सुंदर बनाते हैं. राइट. चलेगा. राइट. एज्यूम दैट दिस इज योर हाउस. ओके चलो ये शायद मान लीजिए यहीं की आपकी जेएसडब्ल्यू की कोई एक टाउनशिप है. राइट. तो टाउनशिप में ऐसे आपके पास सारे सीरीज में हाउसेज हैं. ओके ऐसा करके बहुत सारे हाउसेज हैं 1 से लेके 49. उनको नंबर भी दिया गया है. ये आपका फर्स्ट नंबर और ये आपका 49 नंबर. So the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. Right. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the following it. Find the value of x. तो पहले आपको ये दिखाना है कि एक वैल्यू है आपके x की, एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है. राइट. फॉर दैट वैल्यू ऑफ x उसके प्रीवियस जितने भी हाउसेस हैं उनके नंबर्स का सम करो. और आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ x उसके बाद में जितने भी हाउसेस हैं उनके सबका सम करो नंबर्स का. सो बोथ सम्स आर सेम. ओके so we have to show that there is one value x. See over here. So you have to show that in the question only they are asking that you have to show that there is one x such that अगर आप x के पहले वाले जितने भी घर हैं उन सब का सम करो. राइट. एंड x के बाद वाले जितने भी घर हैं उन सब के नंबर्स का सम करो. sum of numbers which are after x and sum of numbers of houses which are before x, these two are same. ये आपको पहले बताना है. ये आपको पहले शो करना है. ये आपको पहले प्रूव करना है. एंड नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. राइट. क्या ये चीज पता चली? क्वेश्चन पता चला स्टूडेंट्स? राइट. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो पता चला? कुछ तो बोलो. हाँ या ना? टाइप इन चैट बॉक्स. राइट. राइट. स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये चीज पता चली या नहीं? ओके हाँ चलो ग्रेट. सो 1 to 49 नंबर से आपको ऐसा प्रूफ करना है कि कोई भी x नंबर है. राइट. तो वो चीज हो जाएगी. चलो अब यहाँ पे समझो. अगर मैं प्रीवियस x की बात कर रहा हूँ. राइट. सपोज आपको जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन को फॉलो करते हुए ऐसा एक घर पॉसिबल है. राइट. सो विल एज्यूम दैट लेट x नंबर्ड हाउस. राइट. लेट देयर इज x नंबर्ड हाउस. ओके एक x नंबर्ड हाउस है आपके पास. ओके नाउ अब उससे प्रीवियस कितने नंबर्स होंगे आपके पास? टेल मी. ओके तो x के पहले वाले घर का नंबर क्या होगा? ओके सो x के प्रीवियस समझो. राइट. ये आपका एक घर है. राइट. जिसका नंबर x है. तो अब इसके प्रीवियस वाला जो घर होगा उसका नंबर क्या होगा?
सपोज ये 5 है तो ये 4 होगा, राइट? दिस इज योर x माइनस 1 और नॉट। इन द सेम वे उसके बाद वाले घर का नंबर क्या होगा? इट इज योर x प्लस 1 और नॉट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum from 1 to x minus 1 should be equal to sum from x plus 1 to 100, right? So according to question, right, sum of 1 plus 2 plus 3 up to x minus 1 is equal to sum of x plus 1, x plus 2 up to 49. Are you getting my point? Please give me some response. क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? ओके, चलो, हाउ वी कैन फाइंड दिस? चलो, ये सम हमें फाइंड करना है। सम की फॉर्मूला क्या है आपके पास? राइट, सम की फॉर्मूला n by 2 a plus l। ओके, सो दिस इज देयरफॉर n by 2 a plus l। ये हमें इसके लिए यूज करना है। सो व्हाट इज n? हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउसेस आर हियर? फर्स्ट हाउस इज हैविंग नंबर 1, लास्ट हाउस इज हैविंग नंबर x minus 1। टेल मी हाउ मेनी हाउसेस आर देयर? x minus 1 or not, right? चलो, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज x minus 1 और नॉट। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? ओके, यहाँ पे चलो इज इक्वल टू सेम यहाँ पे, राइट? चलो, n by 2 a plus l। चलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउसेस आर हियर? समझो, फर्स्ट हाउस है आपका x plus 1, सेकंड है x plus 2 एंड लास्ट है आपका 49। टोटल आपके पास 49 हाउसेस हैं, राइट? टोटल यू आर हैविंग 1 to 49 हाउसेस। आप x के बाद वाले सारे हाउसेस काउंट कर रहे हो, राइट? ये इसके पहले वाले कोई नहीं लिए, ये आपका है हाउस नंबर x, राइट? यू आर नाउ नॉट काउंटिंग हाउस नंबर x, यू आर काउंटिंग टोटल ऑफ ऑल दिस हाउसेस, राइट? तो ये सारे हाउसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ दिस हाउसेस विल बी, टोटल हाउसेस आर 49, राइट? टोटल हाउसेस आपके 49 है, इतने हाउसेस आपके पास 49 है। ये 49 में से आप x हाउसेस माइनस कर रहे हो कि नहीं, राइट? दिस आर योर 49 हाउसेस। फ्रॉम दिस 49 हाउसेस यू आर सबट्रैक्टिंग दिस x हाउसेस, राइट? तो आपके पास इतने हाउसेस बचेंगे। So your number of houses are 49 minus x or not? Tell me. क्या ये चीज पता चली? राइट, ये 49 minus x पता चला? दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। टोटल हाउसेस आर 49, 49 में से आगे के x हाउसेस हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हियर योर टोटल नंबर ऑफ हाउसेस आर 49 minus x, right? So 49 minus x by 2. Now a plus l, your first term is x plus 1 over here, right? And last term is 49, last term is only 49. Are you getting my point? लास्ट टर्म को गलती से x plus 49 मत लिख देना, लास्ट टर्म इज ओनली 49। ओके, चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर नाउ ऑन बोथ द साइड्स दिस डिवाइड बाय 2 विल गेट कैंसल्ड आउट। ओके, यहाँ आपके पास क्या बचेगा? x minus 1। चलो, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, यहाँ आपके पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 49 माइनस x, दिस इज योर x plus 50। 49 plus 1 is 50, isn't it? ये आपका हो जाएगा x plus 50। So therefore अब ये x आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so x into x is your x square minus x is equal to, so अब यहाँ पे आपका 49 मल्टीप्लाई हो जाएगा, so this is your 49 into x plus 49 into 50। okay, फिर माइनस x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 50x। Therefore if I simplify this further, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर एज इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। चलो, माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज माइनस एक्स। नाउ 49x माइनस 50x, वो भी आपका माइनस एक्स होगा, वो इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। प्लस 49 इंटू 50 इज माइनस 49 इंटू 50 इक्वल टू 0, राइट? अभी उनको प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 49 इंटू 50 आपका उधर जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा प्लस 49 इंटू 50। ओके, तो ये 2 इंटू 25 इज योर 50, राइट? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, समझो आप कहाँ पे आपका टाइम बचा सकते हो, राइट? मल्टीप्लाई करके फिर सोचोगे होल स्क्वायर है या नहीं, तो जरूरत पड़े तो ही मल्टीप्लाई करो। ओके, चलो, अब x स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट? एक्जैक्टली प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होना चाहिए, बट x इज योर नंबर ऑफ हाउस। तो क्या आपके किसी भी घर का हाउस माइनस में है? बोलो, आप में से किसी का भी घर का हाउस है ऐसा -5 -6?
बोलो सर मैं तो बीबी नगर टाउनशिप में रहता हूँ, मेरे घर का नाम नंबर है T-6। ओके, यस, तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही होगा। सो इट इज योर स्क्वायर रूट 49 into square root 25. Square root 49 is 7, square root 25 is 5. So 7 5 is 35. Okay. So implies x is equal to 35. Is it clear? Please give me some response. क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, ये चीज क्लियर, x is equal to 35. ओके, अभी शॉपिंग मॉल्स तो बहुत मिस कर रहे हो क्या आप लोग अभी? राइट, लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हो। तो अभी शशिन सर ने याद दिलाया कि जब भी आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो शॉपिंग मॉल्स में जब भी आप नीचे कार पार्क करते हो, राइट, लिफ्ट में जाओगे, वो सब क्या होता है आपका ग्राउंड फ्लोर के नीचे -1 -2 -3। और जो भी आपके बिग बाजार और वो सब जनरली ग्राउंड फ्लोर पे होता है या -1 पे होता है, ताकि वहां से डायरेक्ट आप सामान लेके सुपरमार्केट से कार की डिक्की में डालो और घर चले जाओ। ओके, -1 -2 -3, तो वो अलग है, राइट, वो आपका वर्टिकली है, तो इसलिए है, ये आपका रो वाइज है, इसलिए सारे नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे आपके 10M 5.3 के होमवर्क के सारे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। ओके, और प्रीवियस क्लास में प्रियांशु ने याद दिलाया था मुझे कि आपके 4th चैप्टर के ऑनलाइन एग्जाम बाकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इजंट इट? टेल मी, कुछ तो बोलो। 4th चैप्टर के ऑनलाइन एग्जाम बाकी है, हाँ या ना? ओके, सो ये संडे एग्जाम रख दे 10M04 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एग्जैक्टली 5th भी खत्म हो गया है, 5th के भी रखने वाला था, बट 5th के लिए चलो आपके 1 वीक पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, राइट। सो वी आर कीपिंग एग्जाम ऑन दिस संडे फॉर 10M04। इज इट क्लियर? राइट, 10M04 का ऑनलाइन एग्जाम रहेगा संडे। आज ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ, पीटीएम का भी डालना है, एग्जाम का भी डालना है। चलो, एडवांस क्वेश्चन किस किस ने किए हैं बताओ? एडवांस क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑफ आर हैविंग डाउट इन एडवांस क्वेश्चन? राइट, जल्दी जल्दी, एडवांस क्वेश्चन 1 to 7 कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? टू एंड फोर, ओके। अभी से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको कि नेक्स्ट क्लास में आपका मतलब ये संडे 10M4 का एग्जाम है और उसके नेक्स्ट संडे 10M5 का रहेगा। ओके, नेक्स्ट संडे 10M5 का रहेगा। अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है तो उनको पहले ही बोल देना कि ऑलरेडी बुक्ड है मैथ्स का एग्जाम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट संडे 10M5 का रहेगा, ये संडे आपका मतलब डे आफ्टर टुमारो 10M04 का है, एंड नेक्स्ट संडे आपका 10M5 का रहेगा। ओके, सो लेट अस सी एडवांस क्वेश्चन नाउ हियर ओनली, इसी सेक्शन में देख लेते हैं। चलो, और नेक्स्ट वीक मंडे से न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, राइट? फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट 10M6 ट्रायंगल्स। ओके, टाइमिंग ऑफ द सेम 3 to 5 राइट, इवनिंग। ओके, स्कूल में कहाँ तक पहुंचे, कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया अब स्कूल में? ट्रायंगल तो कब का खत्म हो गया होगा? एडवांस क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बोला ना, क्वेश्चन 2 में डाउट है, 2 and 4 समझो। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ वो भेज दूंगा ट्रायंगल चैप्टर्स का मॉड्यूल, डोंट वरी। द सम ऑफ n टर्म्स
of 3 APs are S1, S2 and S3. ओके, तो आपके सम ऑफ n टर्म्स हैं, 3 अलग अलग AP दिए गए हैं, AP1, AP2, AP3। इन सब में आपके पास n टर्म्स हैं, राइट, फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स। सो AP1 में जो आपके n टर्म्स का सम है वो है आपका S1, ये आपका S2, ये आपका S3। Okay. The first term of each is unity and common difference are 1, 2 and 3 respectively. Okay. First term of each is unity. First term का आपका term है unity. Okay. And common differences are 1, 2 and 3 respectively. तो अगर यहाँ पे common difference 1 है, so 1 plus 1 2, 2 plus, नहीं तो मैं direct वही लिख देता हूँ, first term are unity, right? And common difference are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 equal to 2S2. You have to prove that S1 plus S3 equal to 2S2. बस LHS और RHS में आपको बस सारी वैल्यूज रखनी है, that's it. Okay. So let us find values or expressions for S1, S2 and S3. Okay. तो चलो Sn की फॉर्मूला क्या है? n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Right. So therefore Sn S1 आपका हो जाएगा 1 by 2 times a plus n minus 1 into d. D is your 1. So it is equal to half. Chalo 2 plus, right, n minus 1. 2 minus 1 is your 1. And so it is your n plus 1. It is equal to 1 half n plus 1. Therefore S1. Chalo next. In the same way S2, right. अब ये आपका S1 हो गया, S2 क्या हो जाएगा? n by 2. अरे यहाँ पे गलती, n तो n ही है ना, n तो n है, n की जगह मैंने 1 रख दिया। जागो ग्राहक जागो। Okay, so this is your n by 2 n plus 1. चलो अब same in the same way let us try to find S2, right? So S2 is equal to n by 2 times a तो आपका 1 ही है, right? n भी अब आपके पास n टर्म्स हैं दोनों में and d है आपका 2, right? So after simplification I will get here n by 2, 2 into 1 2 plus 2n minus 2 plus 2 minus 2 cancel. So this is equal to n by 2 into 2n, 2 cancel. This is equal to n square. Okay. So therefore S2 equal to n square. So in the same way S3. So S3 is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. D is your 3. So this is equal to n by 2, 2 plus 3n minus 3. 2 minus 3 is minus 1. Okay, so 3n minus 1. So it is equal to your n by 2 into 3n minus 1. This is your S3. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले टेल मी S1, S2, S3, ये तो आसान है। Okay. Now we will put these values of S1, S2, S3 in LHS and RHS. Okay. So what is your LHS S1 plus S3? LHS is equal to S1 plus S3. Right. So what is your S1? S1 is your n by 2 into bracket n plus 1. Plus what is your S3? S3 is your n by 2, 3n minus 1. Okay. So this is your n by 2, 3n minus 1. n by 2 common निकल जाएगा. We'll take n by 2 common. So this is your n plus 1 plus 3n minus 1. Plus 1 minus 1 cancel. 3n plus n 4n. So this is your n by 2 into 4n. Okay. So ये आपका हो जाएगा 2 2s are 4, which is equal to 2 times n square. Right. And now from here you can see that n square equal to S2 or not. Right. Because n square equal to S2. So this is your 2 times S2 is equal to RHS. So therefore LHS is equal to RHS. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? टेल मी.
है आसान क्वेश्चन, राइट, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जाना था। चलो क्वेश्चन 2 के बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है, टेल मी, राइट, एडवांस क्वेश्चंस, राइट, और इट इज टाइम ऑलरेडी, 1 ही मिनट बाकी है, नो इश्यू। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आइटम्स ऑफ एपीआर एबीसी देन शो दैट। ओके, उसमें भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, तो जितने स्टूडेंट्स भी एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट लेट मी नो, राइट, ऐसा है तो उनको पर्सनली सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, बिकॉज एडवांस क्वेश्चन आर नॉट फॉर एवरीवन। ओके, is it clear? So let us finish this chapter today, and your today's homework is you have to finish this exercise in regular book, that's it, right? आपको ये exercise regular book में finish करनी है, right? There is not any other homework for formula book. ये exercise आपको regular book में finish करनी है. So today's homework is finish 5.3 in